पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की मिलाद कमेटी के तत्वाधान में रविवार को पीएमसीएच परिसर में 75वें जलसे सीरतुन नबी का आयोजन किया गया। On this blessed occasion of Seeratun Nabi, it is truly an honor to stand before such a distinguished gathering of medical professionals and future doctors. Today, instead of giving a long speech, I would like to share a few reflections from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which are especially relevant to our medical professions. These reflections are not about how we carry ourselves during difficult times, but how we carry knowledge. Point 1. Prophet sallallahu alaihi wasallam, mercy for all humanity. اللہ تعالیٰ ہولی قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, only as a mercy for all the world. یہ رحمت صرف ایک کمیونٹی کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اسٹرانگ ہو یا بیمار. اور یہی رحمت ہمیں اپنے میڈیکل پروفیشنز میں بھی دکھانی ہوتی ہے. جلسے میں وبھن دھرموں سے تعلق رکھنے والے بڑی سنکھیا میں ڈاکٹر، میڈیکل چھاتر چھاترائیں اور بدھی جیوی موجود تھے. اس موقع پر اسلام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سمپورن مانو جاتی کے کلیان کے لیے ان کے سندیشوں پر روشنی ڈالی گئی. وکتاؤں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے نبی ہیں. ان کے پد چنھوں اور پیغاموں پر چل کر ہی وشو میں نیائے اور شانتی استھاپت کی جا سکتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سبھیتا کے وکاس میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک بربر سماج کی اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ اخبار کا کوئی پنا اٹھائیے پرتی دن صبح، جہاں سے ہم لوگ اپنے دن کی شروعات کرتے ہیں، تو ایسی خبر کہیں حاشیے پہ ہوتی ہے جس میں مانوتا کے پرتی کوئی سکاراتمک سندیش ہوتا ہے. اخبار کی ہیڈ لائن بھری ہوتی ہے ان نرمم اپرادھوں، نرسنس گھٹناؤں سے جو ویشوک استر سے لے کر استھانیہ استر تک ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ہم کس سبھیتا کا نرمان کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا سمے ہے. اور تب ہمیں محمد صاحب کا وہ ایتہاسک دائتو نظر آتا ہے جب اپنے سمے کے بربر اور رکت پپاسو سماج کو انہوں نے ایک ویوستھا پردان کی تھی. اور اس کڑی میں مجھے چارٹر آف مدینہ کے نام سے جو جانا جاتا ہے وہ یاد آتا ہے. چارٹر آف مدینہ کا نرمان، ہم کلپنا کریں کہ محمد صاحب نے اس بربر، ہنسک اور قبیلائی اسمتا کے پرتی اتنت آکرامک سماج کو ایک ساموہک اسمتا کے پرتی سنویدنشیل سماج میں تبدیل کیا. پہلی بار عرب میں کسی نے ساموہک اسمتا کو اپنی قبیلائی اسمتا کے اوپر جگہ دی اور ایک ساجھا سمجھوتا کیا کہ ہم سب کا ساجھا ہی ایک سامان ویوستھا کو بنائے رکھنے میں ہے. اس ویوستھا میں جس میں سبھی اپنے اپنے متوں کو، اپنے اپنے دھرموں کو ماننے کے لیے سوتنتر ہیں، لیکن ساتھ رہنے کی سہ استتو کی بنیادی آوشکتاؤں کو محسوس کرتے ہوئے آپسی ساجھیداری وکست کرنی. یہ موقع ایسا ہے جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
यानी उनकी ज़ात और उनके औसाफ पर गुफ्तगू करते हैं। और ये बड़ा अच्छा मौका है इस बात को समझने का कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी सिफ़ात, उनके अखलाक ज़िंदगी के हर शोबे में अखलाक के आला नमूने थे। किस तरह कोई मजहबी रहनुमा, कोई उस्ताद, कोई बाप, कोई भाई, कोई कमांडर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई दोस्त अपने आप को कंडक्ट करता है, किस तरह अपने लोगों के साथ बर्ताव करता है, उनके लिए एक नमूना पेश करता है। तारीख़ के हर दौर में, दुनिया के हर खित्ते में, हर कौम के लिए, हर नस्ल के लिए वो एक आला तरीन नमूना थे। और उनके इस किरदार को जितनी गहराई से समझा जाए, नई बातें, नई परतें मानी की खुलती जाती हैं। अब ये हम जब किसी भी मज़हब के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा की ज़ात को समझते हैं तो उसके अकायद के अलावा दूसरे जो उनकी खूबियाँ थी, जो उनकी तालीमात थी, उनको भी समझते हैं। और यहाँ पर एक कॉमन वैल्यू आता है सभी मज़ाहिब में, चाहे किसी भी मज़हब के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा हों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हों, महात्मा बुद्ध हों, महावीर जी हों, गुरु नानक जी हों, श्री कृष्ण जी हों, जो उनके अकीदे थे वो अपनी जगह है। लेकिन जो उन्होंने मिसालें पेश की एक समाज के लीडर की शक्ल में, एक राजा की शक्ल में, एक इंसान की शक्ल में, समाज के एक फर्द की शक्ल में, उसमें हर मज़हब का आदमी कुछ न कुछ उनसे सीख सकता है। और अगर किसी दूसरे मज़हब के रहनुमा की अच्छी बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस मज़हब को अपनाने पर मजबूर हुए या हमने उसको अपनाया। हम अच्छी बातों को, जो कि कॉमन वैल्यूज़ हैं, कदर मुश्तरक जिसको कहते हैं, हमेशा समझ सकते हैं और पसंद भी कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मशहूर अमरीकी माहिर फल्कियात माइकल हार्ट का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी बीवी की मदद से एक किताब तरतीब दी है, किताब लिखी है द 100 के नाम से। उसमें 100 बड़ी शख्सियात का उन्होंने तज़किरा किया और सरे फहरिस्त जिनका नाम रखा है, जिस शख्सियत का तज़किरा किया उन्होंने, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में, इस मौजूदा वक्त में भी लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को किस तरह से देखते हैं। दुनिया की वो वाहिद शख्सियत है जिसकी अवामी ज़िंदगी जिस तरह से गोया किताबों में खुली किताब की तरह से हमारे सामने है, उसी तरह से प्राइवेट लाइफ भी, निजी ज़िंदगी भी लोगों ने उस वक्त से लेकर के आज तक हमारे सामने जमा कर दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसीलिए कुरान ने कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए, आपके लिए, मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए, सब के लिए गोया यकसा वो आइडियल है, नमूना है। कोई भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। ये कुरान मजीद में कहा गया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए थे तमाम लोगों के लिए। लिहाजा चुनांचा आप किसी एक नस्ल, एक तबके या किसी एक मुल्क या एक कौम के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए आए थे। बदकिस्मती की बात यह है कि आज मुखातब यानी जो मुसलमानों के अलावा लोग हैं, उन्होंने भी समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों के नबी हैं। और उससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, मुसलमानों ने समझा कि हमारे नबी हैं। अरे किसने कहा कि आपके नबी हैं? ये जब अल्लाह ताला की तरफ से सूरज और चांद और इस तरह की चीजें आती हैं तो किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं होती है, तो नबी आखिर एक कम्युनिटी के लिए कैसे हो जाता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। लिहाजा ये तमाम कम्युनिटी के लिए नबी है। तमाम कम्युनिटी के लोगों को लोग इससे इस्तेफादा कर सकते हैं और तमाम कम्युनिटी के लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ना चाहिए। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा मैं मुसलमानों का नबी हूँ। आज की दुनिया में शायद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। ठीक है, वो 14 साल पहले जब वो दुनिया में तशरीफ लाए
اور عرب جیسے اس زمانے میں عرب دنیا کا ورسٹ سویلائزیشن تھا. آپ امیجن کیجئے کہ جو باپ خود اپنی زندہ بچی کو جا کر ریگستان میں دفن کر دیتا صرف اس لیے کہ اگر ہمارے گھر میں داماد آئے گا تو ہماری بےعزتی ہوگی. اس میں ایسا انقلاب آیا صرف 23 سالوں میں. کوئی نو انٹرنیٹ, نو موبائل فون, نو CNN نیوز. ایک ایسا انقلاب آیا 23 سال میں کہ وہ قوم دنیا کی سب سے مہذب ترین قوم بن گئی. وہ شخص کیسا تھا, کیا پرسنالٹی رہی ہوگی اس کی, اس 23 سال میں کایا پلٹ کر دی. آج ہم انہیں کو سلام کرنے آئے ہیں اور ان کے پیغام کو پھر دوبارہ زندہ کرنے آئے ہیں. ہم اس بیچ کے بچوں کو 22 والے بیچ کو اور بیچ والوں کو دل سے مبارکباد دیتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ یہ پیغام آپ لوگ جاری رکھیں گے. कार्यक्रम के दौरान 75वें सीरतुन्नबी मैगजीन विमोचन किया गया. मेडिकल के छात्र छात्राओं ने हम्द और नात शरीफ का नजराना पेश करके माहौल को यादगार बना दिया. बैठा था कोई दौलत का प्यासा था, कोई ख्वाबों में रहता था, कोई माजी में भटका था, कोई तदबीर करता था, कोई तस्वीर करता था कि जुल्मत राज करती थी, खुदा खामोश बैठा था, कोई आंसू न छलका था, किसी का दिल न तड़पा था. अभी भी वक्त है लोगों, खुदा से गिड़गिड़ा के तुम उसे राजी करो लोगों, खुद ही अपनी मिटा के तुम. ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बसते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कवल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल. फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे. ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, यकलो ज़हानत सऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुश्की ये तर, और इस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए. शुक्रिया. बहुत